Hello and very welcome to you all. Hopes everyone is fine and doing their best at their places. So in this video we are going to start with a new module, that is new library of Python, that is Tkinter. As you can see in your screens that we are having these 5 topics to be covered in this video. So we are going to starting with the very first one, that is what is Tkinter and why we use Tkinter. Guys, as you already know that in the previous video we have covered some of the NumPy videos, we have covered some NumPy concepts. They will be resuming for some time, but that will be starting from very few days. Now I'm going to start this particular topic, there is particular Tkinter library, because this is very important to know the basic GUI making things. So now in this video we are going to start with the very basic thing, that what is Tkinter. So guys, as you already know that in the Python we are having so many different kind of libraries and so many different kind of modules here. So now in all of them Tkinter is also one of them. As you have already studied about the math library, NumPy library and so on. So now what is the use of this Tkinter? This question may come in your mind when you hear the word Tkinter as a beginner. So Tkinter is generally meaning to create a GUI interface you need some platform. For example, अगर आपको कोई डिश बनानी है तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइट? सिमिलरली अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, सिमिलरली अगर आपको कोई एक GUI इंटरफेस बनाना है तो उसके लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए, राइट? उस केस में हमें यहाँ पे पाइथन ने एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, फॉर एग्जांपल एज ए Tkinter. सो Tkinter आपका वो एक इंग्रेडिएंट है. Tkinter हम कह सकते हैं वो आपका कोई इंडक्शन या कोई गैस स्टोव मान लो. Tkinter के अंदर जो फीचर्स मिले हैं आपको, उसके अंदर के जो अलग अलग विजेट्स मिले हैं, आप उन्हें एक इंग्रेडिएंट्स मान लो. फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को जोड़ के आप अच्छी सी एक एप्लीकेशन बना सकते हो. It always depend upon you whether you make the desktop based application or the Android based. But concept वही है अभी भी. Concept is still same, that you need some platform and some ingredients for the same, for recipe and for the programming. Similarly, now here we are going to start with the very basic thing. So I hope this will be clear to you that what is Tkinter and what is the use of Tkinter. वाई वी यूज़ Tkinter. सो Tkinter का बेसिक मतलब ये है कि आपको कुछ अगर बनाना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे यूज़र अपने कुछ इंटरफेस यानी कि यूज़र को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वहाँ पे वो अपने इनपुट्स को पुट कर सके. फॉर एग्जांपल, आप किसी साइट पे जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं, राइट? वहाँ पे आपके पास यूज़र नेम का कॉलम होता है, पासवर्ड का कॉलम होता है और ईमेल का भी होता है कभी कभी. तो वो बना कैसे? दैट इज़ कॉल्ड GUI, graphical user interface. That is for the graphical page. User, you are the user, and interface means you are getting a platform for using this. So now it already means graphical user interface. This is giving an interface to work upon. For example, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए हम, कि आपको कंप्यूटर में गेम खेलना है, आपको गेम खेलना है, वीडियो गेम खेलना है. सो वीडियो गेम के लिए जाहिर सी बात है आपको PC चाहिए या फिर आपको कोई प्रोजेक्टर चाहिए जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं. तो वो आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया गेमिंग का. गेम में भी आपके तरह तरह के गेम होते हैं, आपको वो एप्लीकेशन भी चाहिए तो आपको एक इंग्रेडिएंट हो गया. ये सारे एग्जांपल्स गाइस एक ही मतलब बनाते हैं आपके लिए. व्हाट इज़ GUI? व्हाट इज़ GUI? Now I hope the very 2 things I have given answer, right? What is GUI in Python and what is Tkinter and why we use Tkinter. ये 3 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं. Now we are coming for the what are the types of widgets in Tkinter. Widgets क्या होते हैं? अभी कुछ अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ये चीज़ अवेयर होगी कि अगर उन्होंने जावा का काम किया होगा, जावा या नेटबीन्स में वर्क कर चुके होंगे, तो उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता था किसी विजेट को यूज़ करने के लिए. विजेट लाइक यूज़र नेम, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, रेडी बटन, label. These are the widgets. We will study about these in detail in upcoming videos. So stay tuned. The next is what is root and what is Tkinter example. So this both thing we will discuss in the end of the video. Now we are having these kind of methods of importing library. As you already know guys that before using any library you need to import that. हमें कुछ भी यूज़ करने से पहले हमें जाहिर सी बात उसकी परमिशन चाहिए, राइट? हमने इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं NumPy में, मैथ मॉड्यूल में और बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स में, तो हमने हमेशा पहले इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी को.
सिमिलरली यहाँ पे भी आपको इंपोर्ट करना है मॉड्यूल टिकेंटर को। अब उसके यहाँ पे 3 वेज आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, 3 वेज है, इंपोर्ट टिकेंटर एस टी के, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार। अब इन तीनों में जो ये आपको ये 3 मेथड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इंपोर्ट टिकेंटर एस टी के, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार, इन तीनों में अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं आपके सामने। पहला जो मेथड है आपके सामने वो है इंपोर्ट टिकेंटर। इसमें क्या है कि आपको जो टिकेंटर के कुछ ही फंक्शंस हैं जिनको आप एसेस कर सकते हो, उन्हें आप जो इसके रेंज से बाहर हैं आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की और फर्स्ट मेथड की कंपैरिजन करते हैं, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यूज दैट आपको हर जगह फर्स्ट वाले में टिकेंटर ही फुल लिखना पड़ेगा, वेदर वी हैव टू डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ लेबल, बटन, एनीथिंग। बट अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले में, इंपोर्ट तीनों में हो रहा है, बट अगर हम बात करते हैं सेकंड वे ऑफ इंपोर्टिंग द मॉड्यूल, तो एज ठीक है, एज ही आर वर्किंग एज एन अलायस। आई होप यू ऑल रिमेंबर द अलायस, व्हाट इट इज़। सो अलायस का मतलब बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हमें टिकेंटर यूज़ करना है वहाँ पे आपका टीके हम यूज़ कर सकते हैं, वो उसका शॉर्ट फॉर्म माना जाता है। सो आप टीके पैरेंथेसिस उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एज टीके लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। बट इन केस हम बात करते हैं, लेकिन इसमें सेकेंड वाले में भी आपके सारे फंक्शंस अवेलेबल नहीं हैं, आपको एक्सेसिबल नहीं कर सकते आप। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट वन, इन दिस यू कैन यूज़ ऑल द मेथड्स। अगर आप लिखते हैं फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम आपको इंपोर्ट किस लाइब्रेरी से करना है, टिकेंटर से। क्या इंपोर्ट करना है, स्टार। स्टार का मतलब हमेशा ऑल होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे स्पेशली इन द पाइथन और इन द माईएसक्यूएल ऑल्सो। तो यहाँ पे हम स्टार लिख रहे हैं, इट डायरेक्टली मीन्स दैट आपके पास सारे फंक्शंस को यूज़ करने की परमिशन है जो भी टिकेंटर के लाइब्रेरी में है। सो आई होप इन तीनों में डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि आपको अभी बिगनर हो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आई विल ऑल्सो ओनली प्रेफर द थर्ड वन मेथड, दैट इज़ फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, आप हर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वीडियो पोस्ट करनी होती है अपने रील्स के लिए, आजकल वैसे इंस्टाग्राम रील्स काफ़ी वायरल चल रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे कुछ करना होता है तो आप कुछ फीचर्स को यूज़ करते हो, कुछ को आप नहीं करते, बट आपको बस अवेलेबल हर कुछ होता है इन पर्सनल अकाउंट। व्हेन वी गो ऑन द बिजनेस अकाउंट, सो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी एड ऑन दिए होते हैं। सो सिमिलरली द बिजनेस वन अकाउंट इज़ यूज एज अ थर्ड प्रोसीजर। यहाँ आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, बट आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो उसको। So I hope these three methods will be very much clear to you all, because these are the very important thing guys to know about, because this is a basic. From importing we always start the coding, because without importing we can't use any of the function of this particular module on this particular library. So now we are going to start with an example, that what we can take an example. As I have already told you, I only prefer for the third method. मैं हमेशा थर्ड मेथड को ही क्यों प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इसमें हम सारे मॉड्यूल सारे फंक्शंस को हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट स्टार, ये पहला आपका सेंटेंस होता है कोडिंग के लाइन में, बिकॉज इससे हम इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को, देन ही हम उसके कुछ पार्ट्स को लिख सकते हैं। नाउ वी आर हैविंग रूट इज इक्वल्स टू टीके parenthesis, then at the end root dot main loop and parenthesis. Now what does it mean? गाइस ये 3 लाइन का सेंटेंस है, बट इसमें काफ़ी सारी मीनिंग्स ऐसी हैं जुड़ी हुई हैं। इसको ही अगर आप पढ़ना चाहो तो ये भी बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है आपका, बट इन शॉर्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। बट किसी को कुछ अगर डाउट होता है अभी तक जितना पढ़ा है, प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिना जाने मैं कोई डाउट्स क्लियर नहीं कर सकती हूँ, वेदर इट्स अबाउट दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो। बट गाइस वन मोर थिंग, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अभी कोडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको तरह तरह के नेम एरर्स और तरह तरह के एरर्स भी आ सकते हैं। एरर जनरेशन इज़ वेरी कॉमन व्हाइल यू डूइंग अ प्रोग्रामिंग, व्हाइल यू डू अ कोडिंग। सो यहाँ पे भी आपका कोडिंग का वो एरर जनरेट होने के खतरे बहुत सारे होते हैं, बट उसके लिए आपको एरर्स की नॉलेज होनी चाहिए, दैट व्हाट इज़ द एरर किस तरह के आएंगे, आप उन्हें रिजॉल्व कैसे कर सकते हो। तो उसके ऊपर मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी पहले मैंने बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा आने वाला एरर होता है नेम एरर, जो आपको ऑब्वियसली आ सकता है इस वीडियो के अंडरस्टैंडिंग के बाद, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स में भी आपको सारे क्लियर ना हों जल्दी से, बिकॉज इट्स अ बिगनर, यू आर अ बिगनर एंड यूर अ न्यू कॉन्सेप्ट।
So name error, syntax error, indentation error, these are some common errors that you may get while using the Tkinter. मुझे भी ऐसे errors मिल जाएगा गाइस, तो आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे बिकॉज यू आर टू मच बिगिनर. सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो पहला कोड हमारे एग्जाम्पल का है, फ्रॉम Tkinter import स्टार. तो पहली लाइन होगी. आई होप इसका मतलब क्लियर हो गया होगा, हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है यहाँ पे. नेक्स्ट इज रूट इज इक्वल्स टू tk. सो गाइज रूट का यहाँ डायरेक्टली मतलब ये होता है ना कि रूट आपका एज अ वेरिएबल डिक्लेयर होता है. फॉर एग्जांपल कुछ आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है किसी में, तो आपको एक आगे फॉर एग्जांपल आपको सी में ए और बी की वैल्यू जो आएगी आपको वो स्टोर करनी है. तो आप ये लिख सकते हो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट. आप जब भी सी को प्रिंट करोगे तो ए प्लस में बी में जो भी ऐड हुआ है, जो भी नंबर्स थे उसमें आपको सी में वो शो होगा, करेक्ट. नाउ दिस वी कैन कंसीडर हियर इन दिस वीडियो इन दिस रूट केस. नाउ टीके पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि टीके एक इंस्टेंस है आपके इस पूरे Tkinter मॉड्यूल का. टीके पैरेंथेसिस यूज़ होता है नई विंडो को जनरेट करने के लिए. आप अगर टीके पैरेंथेसिस लिख रहे हो तो आपको इसकी वजह से ही आपको नई विंडो आएगी. यहाँ पे रूट कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है. आप ज़रूरी नहीं है कि आप रूट ही लिख सकते हो. जैसे वेरिएबल में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप XY ही लिखो. आप वेरिएबल में TUKLMN कुछ भी लिख सकते हो, राइट. बट आप वहाँ पे कीवर्ड्स जो ऑलरेडी डिक्लेयर है आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, आपको एरर शो होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस. आप रूट की जगह आप कोई एंड, और, फ्रॉम, इज, इफ इन सब का यूज़ नहीं कर सकते. तो आप रूट की जगह U, O, 0 नॉट न्यूमेरिक, आप अल्फ़ाबेट कुछ भी पुट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपने लिखा H इज इक्वल्स टू TK पैरेंथेसिस, तो भी आपका जो विंडो है जनरेट होके आ जाएगा. बट द मेन थिंग इज द लास्ट वन, रूट डॉट मेन लूप. अब जो रूट डॉट मेन लूप पैरेंथेसिस आप देख रहे हो उसके पहले मैंने लिखा है हैश कोड गोज हियर. सो यहाँ पे आपके मिडिल के कोड्स आएंगे. कोडिंग मतलब आपको कोई विजेट प्लेस करना है, आपको कोई लेबल वहाँ रखना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स वहाँ रखना है, वो आप वहाँ पुट कर सकते हो हैं. सो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि कोड गोज हियर में आपको सारे कोडिंग लिखनी है. आपको कोई विजेट अगर डिक्लेयर करना है, कोई विजेट को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आपका लेबल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडी बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया, इन सभी को आप यहाँ पे एज अ विजेट्स यूज़ कर सकते हो. बट यहाँ पे आपको उसको डिक्लेयर करने के लिए कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, जो कि आपको बेसिक कोडिंग लर्न करनी पड़ेगी. आपको सीखना समझना पड़ेगा, बिकॉज बिना समझे वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है करना. Because according to the program, according to the projects, you have to change it somewhere. So it is important to understand instead of learning it. So these are some widgets we will do in the next upcoming videos. So the very important thing is here you can see button. When you go on any website, you can see there may be two fields, username and email and submit button. So when you click on the submit button, it will take you to the next page, showing you your details or getting you logged in into your account. So how this is happening? There may be some function fixed. While you click on the button, it will take you some another way. So there is some function working on a background basis. So here also in this Python Tkinter also, you have to make some function, you have to do some operation in the button thing, in the button coding. So when you click on the button, it will take you to the next page, or either it opens a new window, or it may give you some pop-up message. Something like will be happening when you click on the button. So it is like that you have to give some command to a button. So when you look up into the attributes of the button, you will also see a attribute as a command. In the command you have to write some function name. So this is all about the widgets. We will discuss each widget in each one video. So you might be very clear about the things, that what kind of the widgets and how many attributes are there and how they can work each other, how we can inculcate them to do our coding in a better way. Because every time you create an interface, you have to do some graphical changes also, you have to do some coloring changes also. There's some lot of things, there's some very lot of fun doing Tkinter, because it makes you very interactive. You will be using your mind. How can we place this button this way? How can we add this textbooks this way? So it will have so much fun if you get to learn very easily. So आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ कि कौन कौन से विजेट्स होते हैं, कि इन विजेट्स को आपको कैसे यूज़ करना है, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे. बट विजेट्स क्या क्या हैं?
वो आपको क्लियर हो गया होगा। हर विजेट्स की एक अलग वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें कि आपको उसके एट्रीब्यूट्स और आपके उसकी जितने फंक्शंस हैं उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो सबका आपको एग्जांपल दिखेगा। आज की वीडियो में मैंने कोई एग्जांपल शो नहीं किया रन करके, बिकॉज इट्स लाइक अ बेसिक इंट्रो ऑफ टिकेंटर, यू शुड नो अबाउट दिस, you should know about this. So it's like a basic intro of this. I hope it is clear, because if you won't be able to understand this thing, so guys please do let me know in the comment section so I can clarify your doubts in upcoming videos. I hope जितने टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं instead of these 5 and all, are all of you clear about it? If not, then please guys let me know. If you guys don't let me know, then how can I improve these things? So I hope जितने ये types of widgets, example of Tkinter code, we will learn in the next video. GUI in Python, and these all you have understood. I hope this all goes very well. If you have any doubt guys, just let me know. एंड वन मोर थिंग गाइस, जितने विजेट्स आप पढ़ रहे हैं उन विजेट्स की एक अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनका आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, और जितने डाउट्स हैं आपके प्लीज़ पूछना ना भूलें। सो गाइस आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ क्लियर देन प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड बाय एंड गाइस टेक केयर।